Hello kids, welcome to Let's Crack CBSE 9th and 10th, and today I am here to discuss with you really important updates regarding your school reopening. Yes, so I think everybody knows that Unlock 4 is into effect from 1st September. So what are the guidelines? I have come with the very official and important source, and I'm going to discuss everything about your school reopening in this video as per the latest guidelines. Okay, so I am Rashmi Singh, your teacher. RSYT is my code. अगर आपको अपने टेंथ क्लास की तैयारी गेयर अप करनी है, स्पीड अप करनी है और बहुत अच्छी तैयारी करनी है, बहुत अच्छा स्कोर करना है, तो आप RSYT कोड यूज़ करके हमारा जो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन है वो बाय कर सकते हो. यू विल बी गेटिंग द 10% डिस्काउंट. आई विल टेल यू मोर अबाउट द सब्सक्रिप्शंस लेटर. सो हम अपना जो वीडियो है वो स्टार्ट करते हैं. So I think all of you already know about the Unlock 4, and the main question is that are we going back to school or not? This is the big question. Unlock 4 का जो न्यूज़ है वो बहुत सारे बच्चों ने मुझे भी भेजा है, and then I tried to Google about it, and then I got the टॉप ऑफिशियल सोर्स, और उस ऑफिशियल सोर्स से मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ आपके सामने, जहाँ पर आपके सारे कन्फ्यूजन जो है वो मैं क्लियर करने वाली हूँ. ओके, so the Ministry of Human Affairs has basically issued the guidelines, and ये जो guidelines है वो कब issue हुए हैं? 29th अगस्त को issue हुए हैं, and this is going to get active, or it is active from 1st of September. Okay, and as per the guidelines from Ministry of Human Affairs, जो हमारा अनलॉक 4 है उसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं उसमें लिबरेशन मिला है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ वापस से स्टार्ट हो रही हैं अदर देन कंटेनमेंट जोन्स. तो कंटेनमेंट जोन्स की जो लिस्ट है वो हर डिस्ट्रिक्ट को गवर्नमेंट जो है वो मेल करने वाली है. सो इट विल गेट अपलोडेड इन वन ऑफ द वेबसाइट्स, जिसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी अभी. एंड वहाँ से आप खुद भी देख सकते हो आपका जो एरिया है, आपकी जो लोकेलिटी है वो कंटेनमेंट जोन के अंदर है या नहीं है. ओके, so let us first have a look at the key takeaways for students. So the phased reopening is going to happen, and lockdown shall continue to be implemented strictly in the containment zones till September 30. And other than that, all the areas which are beyond the containment zones, वहाँ पे phased reopening जो है वो start हो रही है. ये good news. Okay. So now you can basically just leave your home and do some of your important services outside your home also. लेकिन again एक strict advice है, ज़रूरत हो तो ही घर से बाहर निकलो, और जितनी बार बाहर निकलो सारे के सारे norms जो हैं उसको please follow करो. Okay, because your health is your priority, and आपको अपना ध्यान खुद ही रखना है, स्वयं अपना ध्यान रखें. ठीक है, तो की टेक अवेज क्या है वो डिस्कस कर लेते हैं बच्चों. आप लोगों को पहले पता होगा कि हमारी गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे जगहों पे सर्वे किया था. पेरेंट्स जो हैं वो एक्चुअली में अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे हैं, उस पर एक सर्वे किया गया था. तो वाई नॉट स्टार्ट दैट विद दैट. आई थिंक काफ़ी बच्चों को पता होगा, काफ़ी बच्चों को नहीं भी पता होगा. तो बेसिकली दिल्ली में ये सर्वे किया गया था, एंड 61% पेरेंट्स सेड नो, दे डू नॉट वांट देयर चिल्ड्रन टू गो स्कूल. ओके, and 31% parents said that yes, why not, we do not have problem if they follow the strict procedures, SOPs, जो भी है standard operating procedures अगर follow हो रहे हैं तो why not, we can send our children to the school. 46% gave the following reason for being against reopening of schools, that is they don't want to take the risk, senior citizens in the family, social distancing is not possible in the schools, which is a valid reason, cases will increase if schools reopen, online education a good substitute for now. So total 3443 respondents were taken, and with this we have got some national picture. 58% parents not in favor of school reopening, 33% wanted schools to reopen from September, 47% gave the reasons listed above कि ये reason है भाई इसलिए हम बच्चों को नहीं भेजेंगे. State where number of parents opposing the idea was greater than national average, that was 2 states, Gujarat and Madhya Pradesh. ठीक है, तो यहाँ पर मतलब पेरेंट्स जो है दे आर स्ट्रिक्टली अगेंस्ट स्कूल रीओपनिंग. ओके, नाउ कीपिंग ऑल दीज इन माइंड, द गवर्नमेंट हैज़ कम अप विद एन ऑफिशियल नोटिफिकेशन. ये जो नोटिफिकेशन है ये हमारा नोटिफिकेशन आपकी मैम के पास है, और हम आपको बिल्कुल बिल्कुल दिखाएंगे ये नोटिफिकेशन के बारे में.
सो दिस इज़ द गाइडलाइन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जिसका ये गाइडलाइन है। ये गाइडलाइन जो है वो बेसिकली 29/8 को रिलीज़ हुई है, 29 अगस्त को रिलीज़ हुई है, जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें सामने आई हैं। इन एरियाज आउटसाइड द कंटेनमेंट जोन्स ऑल एक्टिविटीज़ विल बी परमिटेड एक्सेप्ट द फॉलोइंग: स्कूल्स, कॉलेजेस, एजुकेशनल कोचिंग इंस्टीट्यूशन will continue to remain closed for students and regular classes activity up to 30th September। मतलब बच्चों 30 सितंबर तक स्कूल तो खुलने वाले नहीं हैं फॉर श्योर, ओके। लेकिन उसके जगह पे कुछ परमिशन भी दी गई है, ठीक है। स्कूल नहीं ओपन हो रहे हैं तो देयर आर सर्टन थिंग्स विच हैव बिन परमिटेड। So here the same point I have taken: school, colleges, educational and coaching institute will remain closed for students till September 30। ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग विल कंटिन्यू, येस, बिकॉज दैट्स अ गुड सब्सटीट्यूट। सो अगर तुम स्कूल जाकर नहीं पढ़ सकते हो तो टीचर्स तो घर आ ही सकते हैं, राइट, थ्रू ऑनलाइन और वर्चुअल क्लासरूम। तो वर्चुअल क्लासरूम्स में आपकी पढ़ाई जो है वो चलती रहेगी। स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज मे परमिट अप टू 50% ऑफ द टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ टू रिटर्न टू स्कूल्स फ्रॉम September 21st फॉर ऑनलाइन टीचिंग रिलेटेड वर्क इन एरियाज आउटसाइड कंटेनमेंट जोन्स। तो यहाँ पर काफ़ी क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि 50% टीचिंग स्टाफ को बुलाया जा सकता है, लेकिन बच्चों को पढ़ाने के लिए नहीं, आपको जो ऑनलाइन एजुकेशन देना है उसके लिए, कि टीचर आएंगे, आके अपने लेक्चर्स स्कूल में रिकॉर्ड कर सकते हैं, या स्कूल में आ करके फिर वहाँ से वो डायरेक्टली अपने क्लासेस को स्ट्रीम कर सकते हैं, उसके लिए टीचर्स को बुलाया जाएगा, ठीक है। स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 9 to 12 from schools outside containment zones will be permitted to visit their faculty to clear doubts on voluntary basis from September 21। 9 क्लास के से पहले के जो बच्चे हैं, छोटे क्लास के बच्चे हैं, उनको तो स्कूल अलाउड ही नहीं है। 9 से 12 के बच्चों को स्कूल अलाउड है, बट ओनली फॉर क्लियरिंग योर डाउट्स, नथिंग एल्स। आप जाओगे, जाकर के डाउट पूछोगे, वो भी वॉलंटरी बेसिस पे। अगर आपको सच में डाउट है, सॉल्व नहीं हो रहा, घर पे दिक्कत आ रही है, तो आप अपनी मर्जी से जा सकते हो, कोई मैंडेटरी कंपल्शन नहीं है कि जाना ही है, ठीक है। एंड दैट टू फ्रॉम व्हेन? फ्रॉम September 21st। ओके, नाउ व्हाट आर द थिंग्स यू नीड टू फॉलो? सो हियर यू कैन सी state, union territory permit 50% of teaching non-teaching staff to be called in the school at the time of online teaching, telecounseling and related work, telecounseling के लिए, related work के लिए, in areas outside containment zone with effect from 21st September। बट क्या फॉलो करना है? स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉलो करना है, एंड विच इज़ इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट। नाउ अगेन, ये जो स्टूडेंट्स हैं वो जा सकते हैं डाउट क्लियरिंग के लिए। दिस विल सब्जेक्ट टू रिटन कंसेंट ऑफ देयर पेरेंट्स एंड गार्जियन। तो मतलब बच्चे स्कूल जाएंगे, लेकिन पेरेंट्स और गार्जियन का रिटन कंसेंट लगेगा, अप्रूवल लगेगा, and will be permitted with effect from 21st September 2020, from which SOP will be issued by Ministry of Health and Family Welfare। So if your parents are going to take the responsibility of your health and they are going to approve it, then only you will be allowed to attend the school। That means the school is not going to be held responsible अगर तुमको कोरोना हो जाता है या कुछ भी तबीयत खराब हो जाती है, तो स्कूल उसकी जिम्मेदारी नहीं लेगा, आपके पेरेंट्स को ही ये जिम्मेदारी लेकर के स्कूल भेजना है, ठीक है। इसके अलावा बच्चों जितने भी स्किल और एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग है वो सब परमिट की जाएगी नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के थ्रू, ITI के थ्रू। हर जगह पे शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग सेंटर्स रजिस्टर्ड विद NSDCL और स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशन और अदर मिनिस्ट्रीज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट। तो स्किल और एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग जो है वो अलाउड है। उसमें भी कोशिश यही की जा रही है कि ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जाए, ज़्यादा बेटर होगा। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में जो सिर्फ PhD के स्कॉलर्स हैं वही जा सकते हैं, दैट टू फॉर टेक्निकल एंड प्रोफेशनल प्रोग्राम्स। जो काम लैबोरेटरी में ही हो सकता है, घर पे नहीं हो सकता, सिर्फ उसी के लिए हमारे जो PhD स्कॉलर्स हैं वो लोग जा सकते हैं इंस्टीट्यूट्स के अंदर, ठीक है। एंड उसके अलावा कई सारी चीज़ें और भी थी जो अनलॉक 4 के अंदर थी, जैसे कि मेट्रो वगैरह की सर्विसेज जो हैं वो September 7 से रिज्यूम हो रही है, एंड 21 सितंबर से कई सारी चीज़ें जो हैं वो रेज्यूम होना शुरू हो जाएंगी। नाउ स्टूडेंट्स, आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट एडवाइस मेरी तरफ से ये है कि देखो, अगर डाउट क्लियर करना है तो एक साथ डाउट इकट्ठा करो
और अपने एक बार स्कूल में आप बात करो कि किस टाइम पे मेरे को सारे सब्जेक्ट्स के टीचर अवेलेबल हो जाएंगे, तो फिर मैं डाउट लेकर एक साथ आऊँ, सारे डाउट्स क्लियर करूँ और वापस घर जाऊँ। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है जितनी भी जगह पे जाओगे। अभी जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, इस नोटिफिकेशन में भी दिया हुआ है, काफ़ी चेंज हो गया है कि अब जो डिस्टेंस मेंटेन करनी है वो 6 फीट की डिस्टेंस मेंटेन करनी है। अर्लियर इट वाज जस्ट लाइक आपके फ़ोन के अंदर आरोग्य सेतु ऐप होना चाहिए, ये ज़रूरी है। ठीक है, एंड जो डिस्टेंस मेंटेन करना है वो 2 गज का या फिर 6 फीट का डिस्टेंस मेंटेन करना है। येस, दीज आर द नेशनल डायरेक्टिव्स। So, face covering is compulsory in public places. Social distancing, individuals must maintain a minimum distance of 6 feet, 2 गज की दूरी in public places. Shops will ensure physical distancing. Spitting in public places is punishable with fine. एंड किड्स, आपको ये भी बता दूं, बहुत सारे जो पनिशमेंट है उसकी भी लिस्ट नीचे दी हुई है, तो कुछ भी इग्नोर मत करना। जब तुम जा रहे हो स्कूल तो तुमको एक एक, बिकॉज यू पीपल आर ऑल्सो लॉ अबाइडिंग सिटीजन। लॉ जो है वो सिर्फ हमारे लिए नहीं होता, अडल्ट के लिए नहीं होता, बच्चों के लिए भी होता है। ठीक है, एंड 9th 11th 12th के बच्चों को इसलिए अलाउ किया जा रहा है सो दैट वो थोड़े रिस्पॉन्सिबल होते हैं, समझदार होते हैं, तो वो इन चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो वर्क फ्रॉम होम ही बोला गया है वैसे मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में, जहाँ जितना हो सके एज फार एज पॉसिबल द प्रैक्टिस ऑफ वर्क फ्रॉम होम शुड बी फॉलोड। एंड इन योर केस घर से जितनी पढ़ाई हो सके करो। एंड एज आई हैव टोल्ड यू, आपको क्या करना है बच्चों, जब भी जाओ स्कूल, इम्पॉर्टेंट है कि सारी रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करो। एंड नाउ यहाँ पे कुछ पनिशमेंट्स वगैरह भी दिए हुए थे, अब ये मैंने काफ़ी पूरा पढ़ लिया है, तुम्हें पढ़ के बोर नहीं करूँगी, बस ये बताऊँगी कि कोई भी ऑफेंस तुम करते हो तो इसके लिए 2 साल की सज़ा हो सकती है। ठीक है, सब में यही लिखा है, imprisonment for a term which may extend up to 2 years, imprisonment with term which may extend up to 2 years. So कुछ भी करोगे 2 साल बर्बाद हो सकता है। ठीक है, कोई तुम्हारे अगेंस्ट कंप्लेन कर दे तो भी, तुम किसी के अगेंस्ट कंप्लेन करो तो भी, तो नॉर्मल सी बात है कि हमें ये सारी चीज़ें फॉलो करनी है। 21 तारीख से स्कूल जो है वो पार्शियली ओपन होगा, 21 तक तो यहीं पे पढ़ाई करनी है, आपको घर पे ही पढ़ाई करनी है। ठीक है, एंड देन ऑल्सो स्कूल में कोई रेगुलर क्लासेस नहीं चलने वाली हैं, सिर्फ डाउट्स क्लियरिंग सेशन होने वाले हैं। ठीक है, तो विद ऑल दीज इफ्स एंड बट्स द स्कूल में ओपन बट विथ सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस। ठीक है, तो ऐसे में क्या करना है आप लोगों को डरना नहीं है बिल्कुल भी। आप वैसे भी वॉरियर्स हो, हमेशा से फाइट करते आए हो, तैयारी काफ़ी अच्छी है तुम लोगों की, घर पे सेल्फ स्टडी बहुत अच्छा किया है तुम लोगों ने। अभी पीरियोडिक टेस्ट के भी नंबर आए थे, एसएसटी में तो मुझे पता है कई सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 25 में से अबव 20 ही स्कोर किया था। ठीक है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू पीपल आर डूइंग रियली ग्रेट एंड यू पीपल आर क्रैकिंग इट यार, सच में। ठीक है, तो आपको और आगे अच्छी तैयारी रखनी है, तो करना क्या है, सीबीएसई क्लास 10 जो है वो ज्वाइन करना है अनअकैडमी पे। वहाँ पर आपको मिलेंगी डेली लाइव क्लासेस। You can chat with your educator, you can ask your doubt, you can engage in discussion, you can have live test and quizzes where you can keep a track of your performance. पूरा syllabus structured way में cover होगा, unlimited access मिलेगा सारे lectures का। Live classes are taken by the top educators on Unacademy, and in just one subscription, everything will get covered. Mathematics, social science, Hindi, science, English, everything kids. आपको सिर्फ अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, सीबीएसई क्लास 10 सेलेक्ट करना है, गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है, एंड यू कैन गो फॉर 3 ईयर 2 ईयर और 1 ईयर सब्सक्रिप्शन। RSYG कोड यूज़ करो, 10% डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, अब मैं आपको एक जेन्युइन एडवाइस देती हूँ। सच में कोरोना जो है ना, उसको अभी जाने में टाइम लगेगा, इवन WHO हैज़ कन्फेस्ड इट। तो यार इतनी तुम लोग सोच में मत पड़ो, ये सब्सक्रिप्शन जो है वो फ़ायदेमंद ही है तुम्हारे लिए। ठीक है, इफ़ यू बिलीव मी जेन्युइनली, मेरे पे थोड़ा सा भी ट्रस्ट है, यू कैन गो फॉर 3 ईयर सब्सक्रिप्शन कम्प्लीटली। RSYT कोड यूज़ करो, 10% डिस्काउंट भी मिलेगा, एंड अगर हो सकता है कोशिश करो EMI पे भी कर सकते हो आप। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे किड्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, इसको एक थम्स अप दे दो, प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल, हिट द बेल आइकन, एंड किड्स don't forget to use the code RSYT whenever you are going to take subscriptions. Okay, so please like this video, share it with your friends. Thank you so much kids. I hope this update has helped you.